हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिकोड सिविल। इस वीडियो में मैं सॉइल मैकेनिक्स के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, जो आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेंगे, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल का। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. So हमें यहाँ लिस्ट 1 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल दी हुई हैं, ठीक है, और लिस्ट 2 में दिया हुआ है हमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। सो व्हाट हैपन्स इन सॉइल, सॉइल का जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ रॉक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी वेदर्ड and then it will be transported. After that there will be deposition and which would result in upheaval. That means कि वहाँ पर एक जगह पर जो weathered rock होगा वो इकट्ठा होता रहेगा, so that will cause upheaval of mass, जिसकी वजह से वो रॉक फॉर्म करेगा फिर से, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस, दिस साइक्लिक प्रोसेस इज नोन एज जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। सो नाउ दिस वेदरिंग इज कॉज्ड बाय मैनी डिफरेंट एजेंसीज, ठीक है। सो इसमें अलग अलग एजेंसीज होती हैं हमारी। सो व्हेन देयर आर रॉक्स एंड मिनरल्स, those are weathered, and if they are being transported to some other place, then that is known as transported soil, and if that is formed in its usual place, then that is known as residual parent material. Okay, now based on different agencies which are transporting the soil, हम सॉइल को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। अगर वाटर सॉइल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो अगर वो सॉइल जो है दैट इज़ बीइंग डिपॉजिटेड इन लेक्स, इफ दैट इज़ बीइंग डिपॉजिटेड इन लेक, दैट इज़ नोन एज लेकस्ट्रॉइन सॉइल। अगर उसी सॉइल को रिवर्स लेकर जा रही हैं, ठीक है, और अगर वो डिपॉजिट कर रही हैं, देन दो सॉइल्स आर नोन एज एल्यूवियल सॉइल और फ्लूवियल सॉइल। और अगर ओशंस या सीज जो हैं वो सॉइल को कैरी कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज मरीन सॉइल। So these are the three types of soil which are classified based on the soil carried by or transported by water, ठीक है। Now अगर similar soil या जो soil mass है उसको अगर ice transport कर रही है, then after deposition it will be known as either till or moraine based on their locations, ठीक है। different locations पर उसको till भी बोलते हैं और different locations पर उसको moraine बोलते हैं, ठीक है। Now if the soil is being transported by wind, then that type of soil is known as aeoline soil, which is sometimes is also written as aeoline soil. Okay, so these are the main types of soil. As you can see from this figure, suppose there is a rock which is being weathered by some agency. Now that is the sediment. Rock will break down into different sediments. So this is the area of sediment, that is known as sediment space area. अगर उस रॉक को विंड्स लेकर आएंगी और इस तरह से ये ड्यून्स की फॉर्म में डिपॉजिट करेंगी, देन दैट टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज एओलाइन सॉइल। अगर उसी रॉक को, उस वेदर्ड रॉक को अगर रिवर स्ट्रीम लेकर आएगी, देन दैट डिपोजिशन ऑफ सॉइल मास विल बी नोन एज फ्लूवियल सॉइल। और अगर उसी को सी डिपॉजिट करेगा, देन दैट विल बी नोन एज मरीन सॉइल। अब अगर सॉइल मास को लेक डिपॉजिट करेंगी, देन दैट विल बी नोन एज लेकस्ट्रॉइन सॉइल। नाउ बेस्ड ऑन दिस बैकग्राउंड, नाउ जस्ट लुक एट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So lacustrine soil, those are the soil which are being deposited by
the lakes, that is deposited at the bottom of the lakes. So A would match up to 3. Then alluvial soil, that is the soil which is being transported by running water or river streams. So B would match up to 2. Then aeolian soil, so that is the soil being deposited or transported by wind. So C would match up to 1. So that means D would be matching up to 4. Let's look at the option marine soil, that is the soil which is being deposited by the sea water. So the correct order would be 3, 2, 1, 4. So that is our option B. Now let's move on to second question. The liquid limit and plastic limit of sample are 65% and 29% respectively. The percentage of soil fraction with grain size finer than 0.002 mm is 24. The activity ratio of the soil sample is. ठीक है, तो क्वेश्चन में जो हमें गिवन है that is liquid limit, that is 65% and the plastic limit is given as 29%. बाकी जो हमें सॉइल में फ्रैक्शन दिया है उनका साइज जो है that is lesser than 2 micron. That means soil belongs to clay category. ठीक है, तो एक्टिविटी ऑफ क्लेज, ठीक है, एक क्ले में एक नंबर शो करते हैं हम, क्ले में एक्टिविटी नंबर जो हमें हेल्प करता है इन स्टडिंग द स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल. ठीक है, मतलब कि ये बताता है कि जो सॉइल में क्ले का फ्रैक्शन प्रेजेंट है, हाउ मच एक्टिव इज दैट कंटेंट इन इम्पार्टिंग प्लास्टिसिटी और कोहेजन. ठीक है, जितना ज़्यादा हमारा एक्टिविटी नंबर होगा उतना ही ज़्यादा उसमें वॉल्यूम चेंज होगा. मोर क्ले लाइक बिहेवियर, हायर स्वेलिंग, हायर श्रिंकेज. और जब ये सब होगा दैट मीन्स कि ज़्यादा वॉल्यूम चेंज होगा तो कंप्रेसिबिलिटी भी उसकी हायर होगी. सो एक्टिविटी नंबर इज शोन बाय द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द परसेंटेज वेट फाइनर देन 2 माइक्रॉन. ठीक है, नाउ व्हाट इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स. सो अगर हम किसी सॉइल सैंपल में वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते जाएं, ठीक है, इनिशियली इफ दैट वाज 0% और उसको 0 से हम आगे बढ़ाते जाएं, सो व्हेन द सॉइल इज completely saturated then that water content is known as shrinkage limit. ठीक है, उसके बाद हम उसको कंटिन्यूसली बढ़ाते जाएं then there will be a state जहाँ पर ये प्लास्टिक लिमिट पर पहुँच जाएगा. और and when the soil is completely loose then in that state the liquid limit corresponding to that state would be liquid limit. ठीक है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है that is the range in which soil remains plastic. तो इसको हम डिनोट करते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स को एज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट. सो एज पर द क्वेश्चन प्लास्टिसिटी इंडेक्स would be 65 minus 29, so that would be 36%. Now plasticity index is 36% divided by percentage weight finer than 2 micron, that is being given as 24. So 36 divided by 24, the activity number is 1.5. So that lies in this range, that is greater than 1.25. इसका मतलब क्या है कि हमारा सॉइल जो है that is in the active state. So correct option for the second question would be option C. Moving on to the next question, third question. The given figure indicate the weights of different picnometers. The specific gravity of the solids is given by. तो हमें यहाँ पर 4 स्टेट दी हुई हैं पिक्नोमीटर्स की. सबसे पहले एम्प्टी पिक्नोमीटर है जिसका वेट W1 है. देन हमने ड्राई सॉइल सैंपल को प्लेस किया है पिक्नोमीटर में एंड द वेट करस्पॉन्डिंग टू दैट वुड बी W2. देन जो हमने बाकी का वॉल्यूम जो बचा हुआ था पिक्नोमीटर को उसको वाटर से फिल किया है और इस पूरे पिक्नोमीटर का वेट जो है दैट इज़ W3. फिर हमने इस पूरे सॉइल सैंपल और वाटर को बाहर निकाला और पूरे पिक्नोमीटर को कम्प्लीटली वाटर से फिल किया and that weight of picnometer in that state is W4. So let's look at it. ठीक है, वही जो पीछे पिक्नोमीटर्स दिए हुए हैं उनको हमने मास की फॉर्म में शो किया है.
ठीक है, M1 M2 M3 एंड M4. सो मास ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, जो मास ऑफ सॉलिड्स होगा, सॉइल सॉलिड्स होंगे तो उसका मास कितना हो जाएगा पिक्नोमीटर में, जब सॉइल सॉलिड्स हैं हमारे पास प्रेजेंट और एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट, तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें देन दैट वुड गिव अस द मास ऑफ सॉलिड्स. देन मास ऑफ वाटर, इस वाटर का मास कितना हो जाएगा अगर हम M3 में से M2 को माइनस कर दें. दैट मीन्स दिस ग्रीन पार्ट विल बी सब्ट्रैक्टेड, so we'll get the mass of water in third figure. Now mass of water in fourth figure is M4 minus M1. Now अगर हमें इसी वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग, इतने ही वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग वेट वाटर का जो है वो मास निकालना है, सो दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस मच मास ऑफ द वाटर, और वो कहाँ से मिलेगा हमें, इस वाले से, विच वॉज कैलकुलेटेड एज M3 माइनस M2. सो M4 माइनस M1 में से हमें M3 माइनस M2 को माइनस करना होगा. सो विल गेट द मास ऑफ वाटर इन द सेम वॉल्यूम. ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, मास ऑफ द सॉलिड्स टू द मास ऑफ द वाटर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स. सो मास ऑफ द सॉलिड्स इज M2 माइनस M1 divided by the mass of water in the same volume of solids. ठीक है, अगर हम टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा रीअरेंज करेंगे then we would get G is equals to M2 minus M1, और rather जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वेट की फॉर्म में, that is G is equals to W2 minus W1 upon W2 minus W1 minus W3 minus W4. So looking at the options, W2 minus W1 upon W2 minus W1 minus W3 minus W4, that is option D. Then moving on to question number 4. A soil sample has a shrinkage limit of 10% and specific gravity of soil solids as 2.7. The porosity of the soil at shrinkage limit is. ठीक है, हमसे इस क्वेश्चन में पोरोसिटी के बारे में पूछा है. So first of all we will look at what is the shrinkage limit. ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था that अगर हम किसी सॉइल सैंपल में कंटिन्यूसली वाटर कंटेंट का जो अमाउंट है उसको इंक्रीज करते जाएं, सो इनिशियली देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड्स. ठीक है, सॉइल के मास में जो वॉल्यूम होगा उसका करस्पॉन्डिंग, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. बट आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लिमिट विच इज़ नोन एज श्रिंकेज लिमिट, उसका वॉल्यूम जो है दैट वुड बी वेरिंग लीनियरली विद द वाटर कंटेंट. ठीक है, दैट मीन्स कि जैसे जैसे आप वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते जाएंगे, जो वॉल्यूम है सॉइल मास का दैट वुड बी इंक्रीजिंग. सो दीज लिमिट्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वाटर कंटेंट्स, इनको डिफाइन किया था अटरबर्ग ने. ठीक है, सो इस वजह से इन लिमिट्स को हम अटरबर्ग लिमिट्स भी बोलते हैं. और दूसरा, ये सॉइल के बिहेवियर को, कंसिस्टेंसी को शो करती हैं. ठीक है, दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो नोन एज कंसिस्टेंसी लिमिट्स. ठीक है, तो श्रिंकेज लिमिट वो लिमिट है वो वाटर कंटेंट है corresponding to which soil is just fully saturated, that is a minimum water content. ठीक है, मतलब कि जो हमारा श्रिंकेज लिमिट है इस पर जो सॉइल सैंपल होगा दैट वुड बी फुल्ली सेचुरेटेड, और इसके बाद जैसे भी हम वाटर कंटेंट बढ़ाते जाएंगे तब भी सॉइल मास जो है दैट वुड बी फुल्ली सेचुरेटेड. ठीक है, सो आफ्टर श्रिंकेज लिमिट इसको हम बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड, बट श्रिंकेज लिमिट पर it would be just saturated. That means corresponding to shrinkage limit our degree of saturation would be 1. Now in question the specific gravity of soil solids is given as 2.7. Now the shrinkage limit, ठीक है, अब shrinkage limit जो है that is a water content that is given as 10%. सो एक बेसिक फार्मूला होता है सॉइल मैकेनिक्स में, ठीक है, रिलेशन है दैट इज
ES is equals to W into G, where E is the void ratio of the soil mass, S is the degree of saturation, W is the water content, and GS is the specific gravity of soil solids. Now applying this formula and putting all the values, हमने E की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. S is 1, W is 10%, that is 0.1, into GS is 2.7, so that would be 0.27. Now there is a relation between void ratio and porosity, which is given by N, that is porosity is equals to E upon 1 plus E. Putting the value of E as 0.27, we would get porosity as 0.27 divided by 1.27, which is 21.2%. So that means option A would be correct for the fourth question. Moving on to next question, question number 5. इस क्वेश्चन में हमें असर्शन एंड रीजन दिए हुआ है, ठीक है. तो असर्शन की स्टेटमेंट है, इफ़ द वाटर टेबल इज़ वेरी नियर टू द सबग्रेड ऑफ द रोड इट विल अल्टीमेटली कॉज द क्रैकिंग ऑफ द रोड सरफेस. और रीज़न का स्टेटमेंट है, द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल विल चेंज फ्रॉम प्लास्टिक टू लिक्विड स्टेट लीडिंग टू इट्स वॉल्यूमेट्रिक डिक्रीज. ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि इफ़ वी कंटिन्यूसली इंक्रीज द वाटर कंटेंट इन द सॉइल सैंपल, तो इनिशियली देर इज़ नो वॉल्यूमेट्रिक चेंज, बट अगर हमने एक सर्टेन लिमिट के बाद, दैट इज श्रिंकेज लिमिट के बाद वॉल्यूम को वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते जाएं, देन देयर विल बी इंक्रीज इन द वॉल्यूम. और अगर हम प्लास्टिक लिमिट से लिक्विड लिमिट की तरफ जाएं, देन देयर इज़ ऑल्सो इंक्रीज इन द वॉल्यूम. सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी ये रीज़न का जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा. कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल व्हेन चेंज फ्रॉम प्लास्टिक टू लिक्विड स्टेट लीडिंग टू इट्स वॉल्यूमेट्रिक डिक्रीज, नहीं, ये इंक्रीज कॉज करता है. ठीक है, सो दैट मीन्स योर रीज़न इज इनकरेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी. नाउ लुकिंग एट द assertion statement, if the water table is very near to the subgrade of the road it will ultimately cause cracking of the road surface. ठीक है, अगर आपका वाटर जो लेवल है, ठीक है, अगर ये सब बेस सब ग्रेड कोर्स है सब बेस के बाद, तो अगर यहाँ पर हमारा वाटर टेबल लाई करता है, ठीक है, तो इट विल अल्टीमेटली कॉज द क्रैकिंग, क्योंकि ये क्या करेगा, जो सॉइल सैंपल होगा बिलो बेस कोर्स उसको लूज़ करता जाएगा. ठीक है, और उसको धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो रिड्यूस करता जाएगा. ठीक है, विच विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन क्रैकिंग ऑफ द रोड सरफेस. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जियो सिंथेटिक रीइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड करते हैं बिटवीन बेस कोर्स एंड द सबग्रेड, जहाँ पर हम रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं इन द हाई प्लास्टिसिटी रीजन. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. In a wet soil mass, air occupies 1/6 of its volume and water occupies 1/3 of its volume. The void ratio of the soil is. ठीक है, कोई भी रैंडम सॉइल सैंपल जो होगा दैट विल बी प्रेजेंट इन दिस फॉर्म, जहाँ पर सॉलिड्स और वॉइड्स जो होंगे दैट विल बी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड. पर इस तरह के मास में हमें जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे सॉइल सॉलिड्स उसको कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा. सो टू अवॉइड दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हम सॉइल सॉलिड्स को जो है, सॉइल मास को जो है वो एक जनरलाइज फॉर्म में डिनोट करते हैं. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फेज डायग्राम. अगर इसमें 3 स्टेट प्रेजेंट होंगी देन दैट विल बी अ 3 फेज डायग्राम, एंड इफ देयर आर 2 स्टेट्स देन दैट विल बी अ 2 फेज डायग्राम. नाउ द वॉल्यूम occupied by the soil sample is distributed between the volume occupied by the soil solids and the volume occupied by the voids, and then further the volume occupied by the voids is combination of volume of air and the volume of water. So in the question, volume of air is given as 1/6 of the total volume, that is V by 6, and volume of water is given as V by 3, and the formula for the void ratio is
volume of voids to the volume of solids. So the volume of voids will be equal to volume of air plus volume of water, that is V by 3 plus V by 6, that is equal to V by 2. Now the remaining volume, अगर ये टोटल जो है that is V by 2, that means ये जो remaining portion होगा that will also be V by 2. That means कि जो solid का volume है that is equal to V by 2. Vs is equal to V by 2, and the void ratio is VV, that is the volume occupied by the voids to the volume of soil solids. So that is V by 2 divided by V by 2. So that means the void ratio in this question will be 1.0. So the correct option for question number 6 would be option C. Moving on to next question. Question number 7. Lacustrine soils are the soils. ठीक है, ये हमने सबसे पहले क्वेश्चन में देखा था कि देयर आर डिफरेंट एजेंसीज विच ट्रांसपोर्ट द सॉइल. सो अगर जो हमारा वाटर है दैट इज़ ट्रांसपोर्टिंग द सॉइल सैंपल और दो सॉइल्स आर डिपॉजिटेड इन द बेड ऑफ द लेक, then those soils are known as lacustrine soils. So the correct option for this question would be option number D. Moving on to question number 8. A soil sample is having a specific gravity of 2.60 and a void ratio of 0.78. The water content in percentage required to fully saturate the soil at that void ratio would be. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन दी हुई है दैट इज़ टू फुल्ली सेचुरेट द सॉइल. So that means the degree of saturation would be equal to 1. Now there is a basic formula which we have discussed earlier, जिसको लिखते हैं हम ES is equals to W into G, where A is the void ratio, S is the degree of saturation, and W is the water content, and GS is the specific gravity of soil solids. So putting all the values, void ratio is given as 0.78, degree of saturation is 1, A is equals to water content हमको निकालना है, then specific gravity of soil solids is given as 2.6. From here the water content would be 0.78 divided by 2.6, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है the water content in percentage, so that means multiplying it with 100 we would get water content as 30%. So that means correct option for this question would be option number B. Moving on to question number 9. A dry soil has mass specific gravity of 1.35. If the specific gravity of the solids is 2.7, then the void ratio will be. So mass specific gravity is denoted by gamma upon gamma W, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ ड्राई सॉइल दिया हुआ है, सो दैट वुड बी गामा D अपॉन गामा W. ठीक है, सो गामा D अपॉन गामा W is given as 1.35 and the mass specific gravity of soil solids is given as 2.7. So there is another formula for different types of densities, that is written as gamma is equals to G plus ES into gamma W upon 1 plus E. Now क्वेश्चन में हमें ड्राई सॉइल दिया हुआ है, so that means the degree of saturation would be 0. So that means formula would be converted to G into gamma W upon 1 plus E, और गामा जो होगा that would be corresponding to gamma D. Now rearranging gamma D upon gamma W is equal to G upon 1 plus E, और gamma D upon gamma W की वैल्यू हमें दी हुई है that is 1.35 and G is given as 2.7. So that means 1 plus E would be equal to 2.7 divided by
1.35, that is equal to 2. That means void ratio would be equal to 1. So the correct option for question number 9 would be option number B. Moving on to the last question of this video, that is a clay sample has a void ratio of 0.50 in dry state and specific gravity of solids is 2.70. Its shrinkage limit will be. श्रिंकेज लिमिट का क्वेश्चन पूछा है, तो श्रिंकेज लिमिट पर जो हमारा वाटर कंटेंट है उसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है, इट इज़ वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट. अब क्योंकि श्रिंकेज लिमिट दिया हुआ है, सो दैट मीन्स आवर सॉइल विल बी जस्ट सैचुरेटेड. सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन वुड बी इक्वल टू 1. देन अप्लाइंग द सिमिलर फॉर्मूला, ES is equal to WS into GS. So putting all the values, E is given as 0.50 into degree of saturation is 1. Then shrinkage limit is to be found out and into specific gravity of soil solids. So the WS would be 0.5 divided by 2.7 और परसेंटेज में इसकी वैल्यू निकालेंगे. सो मल्टीप्लाइंग इट विद 100 वी वुड गेट एज 18.51%. दैट इज अवर श्रिंकेज लिमिट. दैट इज ऑप्शन नंबर C. सो here we conclude our video on the first video on the soil mechanics. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे YouTube चैनल डिकोड सिविल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.